ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनां सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी कल जो हमने शुरू किया था माधवेंद्र पुरी की कथा कंटिन्यू कर रहे हैं। वी आर कंटिन्यूइंग यस्टरडेज पास्ट टाइम। इट्स वेरी प्यूरिफाइंग टू हियर हाउ अ डिवोटी इज विलिंग टू टेक डिफिकल्टीज एंड इनकन्वीनियंसेस फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ऐसे भक्त जो है भगवान के सेवा के लिए कोई भी कष्ट स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। तो हमने कल वहां तक चर्चा की थी कि माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी की स्थापना की, अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद में फिर सब भगवान को भोग ऑफरिंग किया, फिर भगवान का प्रसाद सब को वितरित किया गया और सब लोग जब ये उत्सव मनाया गया तो सबको याद आ गई किसकी? एवरीबडी रिमेम्बर्ड द फेस्टिवल ऑफ अन्नकूट। तो क्योंकि अभी भक्तों की संख्या ज्यादा है तो हम सब श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे पहले की तरह, खाली कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक। सो वी विल रीड वर्स नंबर 86 फॉर दोज हू ऑफ यू हैव गॉट मध्य लीला चैप्टर 4 वर्स 86। Our Avatari Chaitanya Prabhu is there in the class? Maybe Sudhir Prabhu, you can read the translation in purport. श्लोक नंबर है 86 86। देखिया पुरी र प्रभाव लोके चमत्कार, देखिया पुरी लोके चमत्कार, पूर्व अन्नकूट जेन हैल साक्षात्कार, पूर्व अन्नकूट यह हैल साक्षात्कार। Abhay Prabhu, for this verse, just this one verse, you can do screen sharing. This one verse. Sure, Prabhuji. Verse number 86, Madhya Leela, chapter 4, verse number 86, Prabhuji. 86. Seeing the influence of Madhavendra Puri, Verse number 86, yeah. Yeah, please continue. Of Madhavendra Puri, all the people gathered there were struck with wonder. They saw that the Arnakuta ceremony, which had been performed before during the time of Krishna, was now taking place again by the mercy of Sri Radha, by the mercy of Sri Madhavendra Puri. Formerly, at the end of the Dwapar Yuga, all the cowherd men of Vrindavan had arranged to worship Indra, but they gave this worship up, following the advice of Krishna. Instead, they performed a ceremony whereby they worshipped the cows, brahmanas, and Govardhan. At that time, Krishna explained himself and declared, I am Govardhan Hill. In this way, he accepted all the paraphernalia and food offered to Govardhan Hill. It is stated in Srimad Bhagavatam 10.24, 26, 31, and 33. Just read the translation. Prepare very nice foods of all description from the grains and ghee collected for the yajna. Prepare rice, dal, then halwa, pakora, puri, then all kinds of milk preparation like sweet rice, sweet balls, sandesh, rasagulla, and laddu.
The Supreme Personality of Godhead Krishna therefore advised the cowherd men to stop the Indra Yajna and begin the Govardhan Puja to chastise Indra, who was very much puffed up at being the supreme controller of the heavenly planets. The honest and the simple cowherd man, headed by Nanda Maharaj, accepted Krishna's proposal and executed in detail everything he advised. They performed Govardhan worship and circumambulation of the hill. According to the instructions of Lord Krishna, Nanda Maharaj and the cowherd men called in learned Brahmanas and began to worship Govardhan hill by chanting Vedic hymns and the inhabitants of Vrindavan assembled together, decorated their cows, and gave them grass. Keeping the cows in front, they began to circumambulate Govardhan hill. हरे कृष्णा। तो ये जो प्रभु जी ने अभी श्लोक पढ़ा, इसका मैं हिंदी में अनुवाद बता रहा हूँ। प्रभु, you can mute the सुधीर प्रभु। तो Yes. माधवेंद्र पुरी का प्रभाव का वर्णन देखा गया तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। मतलब उन्होंने इतने खुशी के साथ भगवान गोपाल जी की स्थापना की और इतना भोग अर्पण किया, और सबको याद आया कौन सा उत्सव? वो उत्सव जिसमें कि गिरिराज की पूजा 5000 साल पहले की गई थी। और प्रभुपाद जी यहाँ कहानी बता रहे हैं गोवर्धन पूजा की, जो आप सबको मालूम होगी कि द्वापर युग के अंत में जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे तो तब नंद बाबा इंद्र की पूजा करने वाले थे, लेकिन ठाकुर जी ने बोला कि इंद्र की पूजा क्यों करते हो, इंद्र तो सिर्फ सेवक है, हमें गिरिराज की सेवा करनी चाहिए। और सब भक्तों ने मिलकर गिरिराज की बहुत इतने सारे आइटम्स अर्पण किए। यहाँ पर वर्णन किया गया, इंग्लिश में तो आपने सुन लिया होगा, फिर से सुनने से और भी आपका पेट भर जाएगा। मैं आइटम बता रहा हूँ, राइस, दाल, हलवा, पकौड़ा, पूरी, स्वीट राइस, स्वीट बॉल, संदेश, रसगुल्ला। हाँ, लॉकडाउन में भी ये सब आइटम्स मिल सकते हैं आपको सुनने से। तो ये सब आइटम के बड़े बड़े पर्वत अर्पण किए गए और सब खा लिया भगवान ने। और खाने के बाद क्या बोले भगवान? अनियोर 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 अनियोर। और यहाँ पे छोटे कृष्ण, 7 साल के बालक, वो बड़े कृष्ण को देख रहे हैं, गिरिराज को, और बोल रहे हैं देखो गिरिराज ये सब खा रहे हैं यहाँ पर। तो मेरा ये प्रश्न है कि गिरिराज जो है वो भगवान कृष्ण है या गिरिराज भगवान के भक्त हैं? क्या सही है? Anybody like to answer this question? Is Giriraj non-different than Krishna, or Giriraj is a devotee of Krishna? The heart of Krishna. दोनों है। दोनों है, यस। गिरिराज तो कृष्ण है, ये तो पता चलता है क्योंकि सब ऑफरिंग स्वीकार किया। लेकिन एक श्लोक है जिसमें गोपियां कृष्ण का गुणगान, गिरिराज का गोवर्धन का गुणगान करते हैं। एक there's one verse where the gopis are glorifying Giriraj and they call him हरिदास वरिया। वो कहते हैं कि गोवर्धन जो है हरि के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। किसी को पता है एनी श्लोक? कौन सा श्लोक है वो पता है किसी को? Sing together. अंताय मद्रि अबला हरिदास वर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय वासरय कंदर कंदर मूले। इसका अनुवाद क्या है? एक गोपी दूसरे गोपी को बोल रही है हंता। हंता मतलब ओ अरे अरे ओ। वन गोपी saying to another गोपी ओ हेलो, लाइक दैट। हंता आई एम अद्री दिस माउंटेन। ये माउंटेन मतलब कौन सा माउंटेन? गिरिराज। ये क्या है? ये अद्री हरिदास वर्य। हरिदास वर्य, क्यों इनको हरिदास वर्य बोला गया है? देखो ब्रह्मा जी हैं हरि के दास हैं, शिव जी हरि के दास हैं, उद्धव हरि के दास है, और गिरिराज को बोला गया हरिदास वर्य, टॉप मोस्ट डिवोटी। व्हाई इज इट सो? कौन आंसर करेगा ये क्वेश्चन का? क्योंकि प्रभु जी वो सारे भक्तों का सेवा करते हैं और वो नरम नरम घास पूरा यस उनके ऊपर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णा चलते थे। He got the touch of Lord's lotus feet. वंडरफुल। दोनों आंसर करेक्ट है। श्री राम प्रभु ने बताया क्योंकि वो सारे भक्तों की सेवा करते हैं।
हमारे पूना में एक डिवोटी हैं, वो भी ऐसे ही हैं, सब भक्तों की सेवा बहुत करते हैं। उनका नाम है श्री राम प्रभु। तो इसलिए उन्होंने करेक्ट आंसर किया कि वो भी गोवर्धन के पद चिन्ह में चल रहे। तो गिरिराज गोवर्धन सब भक्तों की सेवा कर रहे हैं। और माता जी ने बहुत सुंदर आंसर किया कि गोवर्धन के ऊपर भगवान कृष्ण और बलराम के चरण अंकित हैं। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, प्रमोद प्रमोद मतलब आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर राम और कृष्ण, यहाँ राम का मतलब क्या है? बलराम, बलराम। बलराम, यस। एक बार हैदराबाद में जो है कोई भक्तों में झगड़ा हो रहा था कि जब हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं तो राम का मतलब क्या है? तो एक कोई कह रहा था राम का मतलब है अयोध्यापति राम, कोई कह रहा था राम का मतलब है बलराम, कोई बोला राम का मतलब परशुराम। फिर प्रभुपा जी से पूछा तो प्रभुपा जी बोले कि देखो इसमें तीनों अर्थ आ जाते हैं, अयोध्यापति राम, सीता के पति भगवान राम और बलराम। अब बोलो तो सही, झगड़ा करने से अच्छा कुछ तो गाओ तो सही। तो ये भगवान राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, और वो क्या देता है गोवर्धन सबको? मानम तनोति सहगो गनयो तयोरियत, गायों के लिए हरी भरी घास, और गोवर्धन की घास भी बहुत स्पेशल है, सुगंधिका बहुत सुंदर गंध वाली, सुकोमला, सुकोमला मतलब इतनी कोमल है कि जब ग्वाल बाल खाते हैं उनको ऐसा लगता है कि बस जैसे रसमलाई खा रहे हैं, कोई चबाना भी नहीं पड़ता, ऐसे लाइक वेरी टेस्टी, आइसक्रीम से भी ज्यादा टेस्टी। और उसके साथ साथ क्या गुण है गाय ये घास का? ये बहुत न्यूट्रिशियस है, जो बहुत अच्छे पुष्टि वर्धन मतलब गिविंग गुड हेल्थ। तो क्यों? और ये हो गया गायों के लिए। फिर गिरिराज जी ग्वाल बालों के लिए क्या दे रहे हैं? ग्वाल बालों के लिए फ्रूट्स दे रहे हैं, फिर गुफाएं हैं विश्राम करने के लिए। गोवर्धन की जो गुफाएं हैं उनका एक विशेष गुण है कि वो गर्मी में बहुत ठंडे रहते हैं और ठंडी में बहुत गर्म रहते हैं, मतलब नेचुरल एसी सेटिंग है। अगर बाहर गर्मी है तो यहाँ पर एसी ऑन हो जाएगा, और बाहर बहुत सर्दी है तो अंदर हीटर ऑन हो जाएगा। ये एसी बहुत स्पेशल है, सिर्फ प्रभुपाद की कृपा से हम समझ सकते हैं, सिर्फ एसी भक्ति वेदांत की कृपा से हम ये गिरिराज जी की महिमा को समझ सकते हैं। तो ये गोवर्धन जो है गोपियां गुणगान कर रहे हैं, हरिदास वर्य है, इस पर भगवान कृष्ण और बलराम जी के चरण अंकित है। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु भी गोवर्धन समझ के एक छोटा सा एक हिलॉक था, एक इसे मराठी में टेकरी बोलते हैं, हिंदी में चोटी बोलते हैं, पर्वत की चोटी, उसको बोलते हैं चटक पर्वत। आप में से किसी ने देखा है चटक पर्वत ये स्थान? Has anybody seen this place? Yes, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। ये चटक छोटो पर्वत गोपीनाथ के सामने। ये जगन्नाथपुरी में है। वहां पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर भजन करते थे, और ये स्थान पर चटक पर्वत पर आप देखेंगे तो थोड़ा हाइट के ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु कोई भी चीज पर्वत देखते तो उनको गोवर्धन याद आता, और चैतन्य महाप्रभु दौड़ने लगे ये श्लोक गाते हुए, और उस समय गोविंद उनके शरण के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। भगवान वायु के गेट से जा रहे थे, स्पीड से, वायु के स्पीड से। फिर अचानक भगवान वो रुक गए और बेहोश हो गए, एकदम सब भक्त घबरा गए, क्या हुआ? कोई भक्त आके फिर भगवान को पंखा करने लगे, कोई पानी लेकर आए, लेकिन भगवान होश में नहीं आए। भक्तों को चिंता हो गई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। फिर सारे भक्त एकत्र हुए और उनके कान में जोर से गाने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और भगवान फिर होश में आ गए और जोर से बोले हरि बोल हरि बोल। This is the story I was narrating about Lord Chaitanya. He's running after Govardhan, Chatak Parvat, and he becomes unconscious. Then devotees do kirtan and then again he's. तो चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, अरे मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं तो गोवर्धन पर था, वहां कृष्ण ने मुरली बजाई और राधा रानी आ गए, सारे गोपियां आ गए, और फिर मेरे को बोला फूल लेकर आओ। मैं फूल लाने के लिए गया, फिर आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? Why have you brought me here? Lord Chaitanya was thinking he was with Krishna. तो ऐसे भक्ति एक्सटेसी होती है। तो जब
गिरिराज गोवर्धन को बताया गया हरिदास वर्य, उसका कारण यही है क्योंकि वो सारे भक्तों की सेवा में लगे। किसी के लिए फ्रूट्स, किसी के लिए गुफाएं, किसी के लिए झरने। ऐसे हमें क्या सोचना चाहिए कि मेरा लाइफ है भक्तों की सेवा के लिए। जो भी भगवान ने मुझे दिया है मैं दूसरों की सेवा में अर्पण करूं। अपने लिए तो हर एक कोई जीता है, लेकिन महापुरुष वो है जो दूसरों के लिए जीता है। जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ में हम देखेंगे कि पेड़ जो है वो सब प्रकार के सब प्रकार के जीवात्माओं की सेवा करता है। जब स्वयं गर्मी सहन करता है, दूसरों को छाया प्रदान करता है, स्वयं धूप सहन करता है और बरसात सहन करता है, अपने फल दूसरों को देता है। जो मारने आए, काटने आए, उसको भी फल देता है। भक्त को क्या समझना चाहिए कि माई लाइफ इज फॉर सर्विंग अदर्स, आई एम सिंपली मेंट फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। भगवान के भक्तों की सेवा में। भगवान ने मुझे गाने की योग्यता दी है, मैं गाऊं भगवान के लिए। भगवान ने मुझे बहुत पैसे दिए हैं, भगवान के सामने अर्पण कर दूं। भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी है, उनके लिए प्रवचन करूं। या मेरे को भगवान ने पकाना, अच्छा प्रसाद बनाने की योग्यता दी है, तो वो मैं भगवान की सेवा में अर्पण करूं। यद करोषि यदश्नोषि यज्ञो सिद्धासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। भगवान बोलते हैं जो कुछ भी आप खाते हो, करते हो, तपस्या करते हो, मेरे लिए करो। Whatever you do it for my satisfaction. That is perfection. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा कराई और इंद्र की भंग की, कि इंद्र को अभिमान हो गया था। और भगवान अपने भक्त के हृदय में अभिमान को सहन नहीं करते। यहाँ पे प्रभुपाद जी डिटेल में बता रहे हैं कि भगवान ने सब कुछ खा लिया और बोले अनि और भक्तों ने बोला सब तो दे दिया है, फिर एक तुलसी का पत्ता दिया। फिर सब ने गोवर्धन परिक्रमा की, आप जानते हैं, और सब लोग खुश थे, प्रसाद वितरण हुआ। लेकिन एक डिवोटी थे, वो नाराज हो गए। वन डिवोटी वाज अनहैप्पी। वो कौन है? इंद्र प्रभु। माझी पूजा कशाला बंद केली? Why did you stop my puja? He was very upset because Indra means mentality of controlling. तो हमें इंद्र की ज्यादा निंदा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला जन्म इंद्रलोक में हो जाए। वहां पे इंद्र टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो बोलेंगे 24 अप्रैल को सुबह 7:45 पे क्या बोला था मेरे बारे में। So we should not criticize Indra because he is a great devotee, but we can learn from him what not to do, not to be proud, to be very humble. बहुत नम्र बने रहना, त्रिनादपि सुनिचेन भाव। तो बाद में इंद्र माफी मांगने जाते हैं और भगवान देखते ही नहीं है उसको। He goes to beg forgiveness, Krishna ignores him. Then he goes to his guru Brahaspati and Brahaspati advises him, you take Surabhi cow with you. बृहस्पति बोलते हैं आप गौ माता को साथ में ले जाओ, सुरभि गाय को। सुरभि गाय को देखकर फिर भगवान उनको माफ कर देते। इस तरह हमारे भी जीवन में हमने कितने पाप किए हैं, कितने अनर्थ हैं कई जन्मों से। हम भगवान के पास जाके माफी मांगते हैं, we try to beg forgiveness, the Lord will not forgive, माफ नहीं करे। But we take the help of spiritual master. गुरु जो है वो सुरभि गाय की तरह, उनको हम सामने रख के वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, गुरु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड हरि। तो यहाँ पर गोवर्धन पूजा से हमें सीखने को मिलता है कि ऐसे अभिमान नहीं करना। और इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इंद्र को बहुत अभिमान था और भगवान ने इसके अभिमान को दूर कर दिया। हम एक और श्लोक पढ़ेंगे। और अभय आनंद प्रभु, Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. You can share the screen for the next shloka. That is also nice purport, and you can read the translation and also. Okay, Prabhuji. अभी हम ये अगला श्लोक पढ़ेंगे अनुवाद। प्रभु जी अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ेंगे, मैं फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूँ। सब लोग मेरे पीछे बोलिए श्लोक। ये श्लोक नंबर 87, मध्य लीला चैप्टर 4 वर्स नंबर 87। सकल ब्राह्मण पुरी वैष्णव करिला, सकल ब्राह्मणे पुरी वैष्णव करिला, सेई सेवा मध्ये सब नियोजिला, सेवा मध्ये सब नियोजिला। Translation.
All the Brahmanas present on that occasion were initiated by Madhvendra Puri into the Vaishnav cult, and Madhvendra Puri engaged them in different type of services. Purport. In the scriptures, it is stated, Sat Karma Nipuna Viplo Mantra Tantra Vishada. A qualified Brahmana must be expert in the occupational duties of the Brahmana. His duties are mentioned as 6 Brahmanical engagements. Patna means that a Brahmana must be conversant with the Vedic scriptures. He must also be able to teach others to study the Vedic literatures. This is Patana. He must also be expert in worshipping different deities and in performing the Vedic rituals, yajna. On account of this yajna, the Brahmanas, being the head of society, perform all the Vedic rituals for Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. This is called yajna, assisting others in performing ceremonies. The remaining 2 items are dana and pratigya. Pratigraha. The Brahmanas accept the kinds of contribution Pratigraha from his followers, namely the Shastra, Vaishyas and Shudras. But he doesn't kept all the money. He keeps only as much as required and give the balance to others in charity. Dana. Ray, pause for a minute. Prabhuji, Yes, I'll speak little bit and then you can read afterwards. तो ये प्रभु जी ने जो श्लोक पढ़ा इसका अनुवाद है कि सारे ब्राह्मण वहां पर थे, अभी उनको मूर्ति की पूजा करनी है तो दीक्षा लेना जरूरी है। माधवेंद्र पुरी ने उनको दीक्षा दे दी और दीक्षा लेने के बाद फिर वो गोपाल जी की आरती करने लगे। कोई भगवान को आरती करता, कोई भगवान को भोग लगाता, कोई भगवान को सुलाता। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण का मतलब क्या है। ब्राह्मण के 6 ड्यूटीज है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। पठन पाठन मतलब वैदिक शास्त्रों को पठन करना, खुद पढ़ना और दूसरों को सिखाना, क्योंकि अच्छा टीचर वही हो सकता है जो अच्छा स्टूडेंट रहा हो। अगर मैंने खुद पढ़ाई नहीं है मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स कैसे सिखा सकता। पठन पाठन और यजन याजन यानी भगवान के यज्ञ करना और यज्ञ कराना दूसरों से। और उसके बाद फिर लास्ट में बोला गया कि दान प्रतिग्रह। जब कभी दान मिलता है वो दान ब्राह्मण रखता नहीं अपने लिए, जो जरूरत होता है खर्च कर लेता है और बाकी वो दूसरों को बांट देता है। इस तरह की भावना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण बनना तो अच्छा है लेकिन ब्राह्मण से भी ऊंचा है वैष्णव बनना। जिस व्यक्ति ने हरे कृष्ण मंत्र का जप किया है, चाहे वो ब्राह्मण दीक्षित नहीं भी हो, जो व्यक्ति रोज सवेरे उठ के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, वो व्यक्ति जो हरि नाम ले रहा ब्राह्मण से भी ऊंचा है। वन हु इज चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्ण रेगुलरली इज हायर देन अ ब्राह्मण। एक बार ऐसे थोड़ा सा एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन ब्राह्मणास एंड वैष्णवस। ये 2 प्रकार के थोड़ा मतभेद थे, कौन सच्चा ब्राह्मण कौन है, वैष्णव कौन। So this meeting was held in a place called Midnapur, and the Brahmins and the Vaishnavas were going to meet and discuss what is higher, क्या ज्यादा ऊंचा है। So भक्ति सिद्धांत ठाकुर वहां पर गए और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पहले तो ब्राह्मण वैष्णव में क्या बड़ा है बताना था, तो पहले तो ब्राह्मणों का गुणगान करने लगे। ब्राह्मण बहुत महान होते हैं, ब्राह्मण बहुत दयालु होते हैं। तो सब ब्राह्मणों को लगा अरे तो आप अपने साइड में है। फिर भगवान ने आगे, फिर भक्ति ठाकुर ने आगे बताया कि रियल ब्राह्मण का मतलब क्या है, जो कृष्ण का नाम ले रहे, जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है वो वैष्णव है, ब्राह्मण से भी ऊंचा है। वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से भी ऊंचा है। तो हमें ऑफकोर्स ये जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये पालन करना है, ब्राह्मण के गुण सत्य शौच दया। और प्रभुपाद जी बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र बोलने से अपने आप व्यक्ति ब्राह्मण के स्तर पर आ जाता है और उससे भी ऊंचा वैष्णव बन सकता है। So you can read the next purport, Abhayanand Prabhu, this part. Yes, Prabhuji. You can share the screen. In order for such a qualified Brahmana to worship the deity, he must be a Vaishnava.
Thus, the Vaishnava's position is superior to that of the Brahmana. The example given by Madhavendra Puri confirmed that even though a Brahmana may be very expert, he cannot become a priest or servitor to the Vishnu Murti unless he is initiated in Vaishnava mantra. After installing the deity of Gopal, Madhavendra Puri initiated all the Brahmanas into Vaishnavism. He then allotted the Brahmanas different type of service to the deity, from 4 in the morning until 10 at night, from Mangala Artika to Sandhya Artika, Shan Artika. There must be at least 5 or 6 Brahmanas to take care of the deity. 6 Artikas are performed in the temple and food is frequently offered to a deity and the prasadam distributed. This is a method of worshipping the deity according to the rules and regulations set by the predecessors. Our sampradaya belongs to the disciple succession of Madhavendra Puri, who belong to the Madhava Sampradaya. We are in the disciple succession of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who were initiated by Sri Ishwar Puri, a disciple of Madhavendra Puri. Our sampradaya is therefore called the Madhav's Gaudiya Sampradaya. As such, we must carefully follow in the footsteps of Sri Madhavendra Puri and observe how he installed the Gopal deity on top of Govardhan Hill, how he arranged and performed the Anukut ceremony in only one day, and so forth. Our installation of deities in America and in the wealthy countries of Europe should be carried out in terms of Sri Madhavendra Puri activities. All the servitors of the deity must be strictly qualified as Brahmanas and especially must engage in the Vaishnava custom of offering as much prasadam as possible and distributing it to the devotees who visit the temple to see the Lord. हाँ, तो यहाँ पर आगे बताया गया, पहले मैं भूल जाऊं, आज हमारे ग्रुप में अनंत भगवान प्रभु भी हैं कलकत्ता से और पंकज नेत्र प्रभु भी नगर से हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी लग रहा है कि ये भगवान की कृपा से ये ऑनलाइन प्रीचिंग ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। सवेरे सवेरे 50-60 लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये प्रभुपाद जी की इच्छा से ये पूरा हो रहा है उनका स्वप्न। थैंक यू अनंत भगवान प्रभु एंड पंकज नेत्र प्रभु फॉर ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भगवान की जो पूजा की जाती है वो वैष्णव होना ज्यादा जरूरी है। मतलब कोई अगर ब्राह्मण भी हो, जैसे उसके पास ब्राह्मण का थ्रेड भी हो, अगर वो वैष्णव नहीं है तो भगवान की पूजा नहीं कर सकता, चाहे कितना एक्सपर्ट हो। जैसे कहते हैं कई लोग द्विवेदी चतुर्वेदी होते हैं और अच्छा ब्राह्मण थ्रेड होता है, लेकिन अगर वो हरि के भक्त नहीं है तो उनको भक्ति में आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं। तो हरि की भक्ति प्राप्त होती है एक गुरु के दीक्षा लेने से, परंपरा में। फिर माधवेंद्र पुरी ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को दीक्षा प्रदान की और जो ब्राह्मण थे ऑलरेडी उनको वैष्णव बना दिया। तो वैष्णव का स्तर जो है वो ब्राह्मण से भी ऊंचा। जैसे अभी कोई व्यक्ति ने अगर लॉ पढ़ा है LLB, तो इसका मतलब उसने ग्रेजुएशन पहले ही कर लिया होगा। या कोई व्यक्ति 12वीं क्लास में पढ़ रहा है तो इसका मतलब 10वीं पहले ही पास कर लिया होगा उसने। पूछने की जरूरत नहीं है प्रभु जी आप 10वीं पास हो कि नहीं। जब वो कॉलेज में पढ़ रहा है इसका मतलब उसने ऑलरेडी 10वीं पास कर ही लिया है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मंदिर में सेवा कैसे होनी चाहिए, सुबह 4 से लेकर रात को 10 बजे तक। इसका मतलब 5 बार आरती, मंगल आरती, राजभोग आरती, फल भोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती। ऐसे घर में, जैसे आप में से अधिकांश डिवोटीज गृहस्थ आश्रम में, तो घर में इतना ज्यादा रिजिड होने की जरूरत नहीं है। तो सुबह एक आरती, शाम को एक आरती और हो सके तो कभी बीच में 2 या 3 बार। और जब भी भोग लगाना है तो भगवान को भोग लगा के फिर सब भक्त लोग प्रसाद ग्रहण करें। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारा जो संप्रदाय है वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। मतलब ये ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी से नारद मुनि से व्यासदेव, और व्यासदेव के बाद फिर मध्वाचार्य, फिर उसके बाद माधवेंद्र पुरी। अभी हमारे संप्रदाय में विशेषता क्या है कि इसमें माधवेंद्र पुरी आए हैं। अभी माधवेंद्र पुरी के आने से पहले इस संप्रदाय में
माधुर्य रस का प्रचार नहीं था, यू नो। हालांकि संप्रदाय वही है, लेकिन देयर वाज नो डिस्कशन ऑन कॉन्जुगल लव पास्ट टाइम्स एंड देयर वाज नो वर्शिप ऑफ राधा रानी। राधा रानी की पूजा नहीं होती थी। फिर माधवेंद्र पुरी ने ये सिस्टम शुरू किया कि सब राधा रानी की पूजा भी की जानी चाहिए कृष्ण के साथ में। तो इसलिए हमारा संप्रदाय में श्रृंगार रस या माधुर्य रस की शुरुआत हुई। हम गुरुवाष्टकम में बोलते हैं, श्री राधिका माधवयोर पारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिक्षणा स्वादन्न लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। इसका अर्थ है कि जो गुरु हैं वो राधा और माधव के गुणगान करते हैं, उनकी लीला का, उसका रस का आस्वादन करते हैं। और माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं ईश्वरपुरी के शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं षड गोस्वामी। ऐसे करते करते फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर भक्ति सिद्धांत, और फिर ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, फिर उनके शिष्य, और फिर आप सब भी जो परंपरा में, उनको भी गुरु बनना है। गुरु बनना मतलब दीक्षा गुरु नहीं जरूरी, मतलब जारे देखो तारे कहो कृष्ण पदे, जिससे भी मिलो उसको थोड़ा कृष्ण के बारे में बताओ। इस तरह से आप गुरु बन सकते हैं। और लास्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें जैसे गिरिराज जी की पूजा की माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी की, वैसे हमें भी पूजा करनी चाहिए। और हमारे जो भक्त जो यूरोप अमेरिका में हैं उनको स्पेशली बड़े ऐश्वर्य के साथ करनी चाहिए और सब अच्छी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अनंत भगवान प्रभु, you have got access to the book or on the mobile, or you can read the verse. अनंत भगवान प्रभु, ठीक है। तो अभी आगे 2-3 श्लोक मैं समरी में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा विषय बाकी है। और इसके बाद क्या हुआ, जब गोपाल जी की मूर्ति स्थापना हो गई, और से लोग पड़ोस से आने लगे। Many people came from neighbor. Somebody said, here is some money I give you, make a boundary wall. भगवान के लिए बाउंड्री वॉल बनाओ। फिर कोई और व्यक्ति आए, वो बोले कि मैं कुछ भगवान के लिए गाय दान में देना चाहता हूँ। और फिर कोई इस तरह सब डोनेशन करने लगे, और फिर अन्नकूट सेरेमनी हुआ। फिर एक श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पढ़ना चाहूंगा, श्लोक नंबर 95, टेक्स्ट नंबर 95। आनंद भगवान प्रभु, यू आर देयर? पंकज नेत्र प्रभु, ठीक है। maybe Sudhir Prabhu, you can decide who will read now next verse. The verse number 95. Abhay Prabhu, verse number 95 है screen पे. Please repeat after me. ब्रजवासी लोकेर कृष्ण सहज प्रीति। कृष्ण सहज प्रीति। हाँ, पंकज नेत्र प्रभु हैं? Yes, Prabhuji, I am here. I am in a standing condition with the mobile. Just I will be reaching within 5 minutes near CC book. Okay, ठीक। गोपाले सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। Sudhir Prabhu, you decide who will read. Sudhir Prabhu, Vijay Baldev Prabhu. Only 1 minute. Anybody is reading? The ideal place to execute Krishna consciousness is Braj Bhumi or Vrindavan, where the people are naturally inclined to love Krishna and Krishna is naturally inclined to love them. Please shall I read purport as well? Please read the. In the Bhagavad Gita 4.11, it is said, Ye yathamam prapadyante tams tathaiva bhajaimam aham. There is a responsive cooperation between the Supreme Lord Krishna and his devotees. The more a devotee sincerely loves Krishna, the more Krishna reciprocates. So much so that a highly advanced devotee can talk with Krishna face to face. Krishna confirms this in Bhagavad Gita 10.10. Tesam satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te.
To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. The actual mission of human life is to understand Krishna and return home back to Godhead. Therefore, one who is sincerely engaged in the service of the Lord with love and faith can talk with Krishna and receive instructions by which he can speedily return home back to Godhead. Today, many scholars defend the science of religion and they have some conception of the Supreme Personality Godhead. But religion without practical experience of the Supreme Personality Godhead is no religion at all. Srimad Bhagavatam describes this as a form of cheating. Religion means abiding by the orders of Krishna, the Supreme Personality Godhead. If one is not qualified to talk with him and take lessons from him, how can one understand the principle of religion? Thus, talks of religion or religious experience without Krishna consciousness are useless waste of time. हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट बताया गया है जो हमारे श्री राम प्रभु जी ने पढ़ा कि जो सबसे अच्छी जगह है कृष्ण भावना का अभ्यास के लिए वो है वृंदावन या ब्रजभूमि। क्योंकि ब्रजभूमि में सबका स्वाभाविक प्रेम होता है कृष्ण के प्रति और कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं। यहाँ ब्रजवासियों से बात करेंगे ना, वो कृष्ण और राधा रानी को ऐसा संबोधित करते हैं जैसे उनका कोई मित्र हो। अरे कन्हैया आया था, अरे देखो राधा रानी जा रही है, इस तरह। तो ये ब्रजवासियों का जो प्रेम है इतना ऊंचा होता है हम उसकी नकल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमिटेट देम बिकॉज दे आर ऑन अ हायर लेवल ऑफ भक्ति। दे हैव रियलाइज्ड जो कृष्ण संबंध है। भगवत गीता में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवत गीता का श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जितना आप भगवान के प्रति समर्पित होगे उतना ही भगवान आपके साथ प्रेम का आदान प्रदान करेंगे। जितना भगवान को समर्पण करोगे उतना आपको अनुभव होगा भगवान की कृपा का। जो सच्चा भक्त होता है वो तो भगवान से बातचीत भी कर सकता है। एक भगवत गीता का एक श्लोक बताया गया, ईशाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक। जो प्रीति से मेरा नाम लेता है वो व्यक्ति जो है मेरे को प्रीति से नाम लेता है उसको मैं बुद्धि देता हूँ। तो प्रीति से नाम लेते, अभी हम हरि नाम जप करते हैं तो कई बार क्या होता है, आज मैं जप कर रहा था और 7:15 बजे दर्शनार्थी होते हैं, तो अभी 10 मिनट या 15 मिनट बचे हैं और 3 माला है, हरे कृष्ण कृष्ण चलिए जल्दी करना। तो प्रीति से नहीं हो रहा, खाली फॉर्मेलिटी हो रहा। तो पहले तो फॉर्मेलिटी होगा, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेज आना चाहिए जब हम प्रीति से कर रहे हैं। वी आर चैंटिंग विद लव, विद अटेंशन, कॉलिंग कृष्ण, ओ गोपीनाथ, ओ कृष्णा, ओ राधा रानी, प्लीज हेल्प मी, ओ गंधर्विका गिरिधारी, राधा श्याम सुंदर, मेरे को मदद करो, प्लीज हेल्प मी। सो दैट काइंड ऑफ प्रीति इज टू बी डेवलप्ड इन चैंटिंग। धीरे धीरे प्रीति को बढ़ाना है। और प्रभुपाद जी आगे बताते हैं ट्रांसलेशन का इसमें परपट में कि मानव जीवन का एक्चुअल उद्देश्य है भगवत धाम वापस लौटना। और वो कैसे संभव है? भगवान से प्रीति करके। जब प्रीति करोगे तो भगवान से बातचीत भी कर सकते हैं। यू कैन टॉक विद गॉड ऑल्सो। एनीबडी नोज एनी स्टोरी इन द शास्त्र वेयर अ डिवोटी इज टॉकिंग टू कृष्ण? जो कृष्ण से कोई भक्त बातचीत कर रहा है, ऐसी कोई कहानी सुनी है आपने कभी? कोई भक्त भगवान से बातचीत कर सके? साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यू नो, हम सबको कहानी मालूम है कैसे ब्राह्मण भगवान को बोलते हैं कि आपको साक्षी होना होगा। भगवान वृंदावन से साउथ इंडिया आते हैं कोर्ट अटेंड करने के लिए। पैदल आते हैं, उस समय लॉकडाउन था लगता है, कोई ट्रेन नहीं चल रहे थे। तो भगवान लॉकडाउन भी थे तो भी पैदल आए और अपने भक्त से मिले, है ना। इससे पता चलता है कि भगवान और भक्त में कैसा रिलेशन। और जब भगवान को बोलते हैं आप चलो, भगवान बोलते हैं नहीं मैं मूर्ति हूँ। The Lord, he asked the Lord to come. The Lord says, no, I am deity. I cannot move. I cannot move. तो भक्त बोले भगवान मूर्ति तो बात भी नहीं करते। अगर आप बात कर सकते हो चल भी सकते हो। Deity cannot talk. If you are able to talk, you can walk also. Walk your talk. इसने भगवान को चेकमेट कर दिया, भगवान को पराजित कर दिया। तो ये प्रेम की महानता है। प्रेम में भक्त भगवान को भी पराजित कर देते। श्रीदामा और कृष्ण कुश्ती खेलते हैं तो उसमें श्रीदामा जीत जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कई लोग हैं धर्म को खाली थ्योरेटिकल समझते हैं, गीता के स्कॉलर बन जाते हैं, रिलीजियस डिपार्टमेंट के हेड बन जाते हैं, लेकिन उनको भगवान के प्रति कुछ प्रेम नहीं होता। तो ऐसे ही कई बार हमारे साथ भी हो सकता है,
भक्ति शास्त्री पढ़ ली, किताबें पढ़ ली, पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। और वो कैसे जागृत होगा? शृण्वताम सुकथा कृष्ण, कृष्ण कथा सुनना, सुबह जप करना। अभी एक डिवोटी मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी आप सुबह भी क्लास ले रहे हो, दोपहर को भी ले रहे हो, शाम भी ले रहे हो, आप थकते नहीं हो क्या? आप थोड़ा आराम करो, हमको भी आराम करने दो। हाँ, why are you taking so many classes? Let us take rest. तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रीति बढ़ाना है भगवान से। The more we hear and chant, the more our love for Krishna will become awakened. जितना ज्यादा हम श्रवण कीर्तन करेंगे, उतना ज्यादा भगवान के करीब पहुंचेंगे। और लास्ट पॉइंट प्रभुपाद जी बोलते हैं, टॉक्स ऑफ रिलीजन विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस आर वेस्ट ऑफ टाइम। बिना कृष्ण भावना के इस सब समय की बर्बादी। तो पंकज नेत्र प्रभु हैं अभी? Anyway, Sudhir Prabhu, maybe who is there? Omkar Prabhu, you are there? Yes, Prabhu. Omkar Prabhu. Name. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Would you like to read? We will have the verse after few one. I will tell you the verse. Yes, I have the book too. Okay. I will tell after some. Yes, Prabhu. Now I will just narrate the story because time is less and we have to complete. Day after tomorrow is Chandan Yatra. उसके पहले ये complete करना है, just tomorrow and the day after. इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सुंदर लोग deity worship करने लगे. Many people gave a donation to Gopal ji. Some gave crown, some gave jewelry, some gave silver, some gave vessels for cooking. बहुत से लोग गोपाल जी की सेवा में देने लगे. एक व्यक्ति बोले मैं पूरा मंदिर स्पॉन्सर करता हूँ. He constructed the whole temple. अभी वो मंदिर अभी भी है, सफेद रंग का मंदिर है जो आपने देखा होगा अनियोर के बाद यहाँ पर संकर्षण कुंड के पीछे है। और हर एक ने बोला कि मैं एक एक गाय देंगे। अभी वृंदावन में कितने सारे ब्रजवासी, और उस जमाने में क्या होता था, लोगों के पास बहुत सारे गाय होते थे। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थे। और ये तो 500 साल पहले की बात है, 9 लाख नहीं रहेंगे लेकिन 5-6 गाय सबके पास होते थे। Everybody would have cows. How many cows do you have? Anybody has cows in their home? आजकल तो नहीं होता। श्री राम प्रभु, अगर गाय हर एक घर में होता तो ये लॉकडाउन में प्रॉब्लम ही नहीं होता। नहीं, अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि we are not able to get milk. Even Radha Vrindavan Chandra temple, NVCC for deities also getting milk is a problem. But if everybody has cow, then we just milk the cow and offer the milk to Krishna. तो अभी अपनी अपनी खेती होगी, अपना अपना गाय होगा तो लॉकडाउन हो लॉकअप हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेंशियल आइटम्स के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, सब कुछ वहीं पर है। So here Prabhupada is saying here that this is the way to install the deity, that we should have deity worship and distribute prasad. Especially in this time we should try, हमें कोशिश करना चाहिए या तो हम प्रसाद बना के बांटें या फिर अगर हम कुछ पैसे डोनेट करें। जैसे अभी यहाँ पर मैं वृंदावन में हूँ, हजारों, खाली इस्कॉन ही नहीं, गौड़िया मठ, अलग अलग ग्रुप सब प्रसाद बांट रहे हैं, क्योंकि कई लोग सड़क पर हैं जिनके पास खाने की कोई फैसिलिटी नहीं है, कई लोग अपार्टमेंट में लॉक्ड अप हैं, तो इतना प्रसाद वितरण हो रहा है। ऐसे ही सब जगह पे, जैसे आप पूना में है, बॉम्बे में है, बेंगलोर में है, तो जहाँ जहाँ पर किसी को समस्या, should try to help. ये this is the way to show our love for Krishna. When we see somebody is suffering because of some reasons, we extend ourselves to help them. तो इतने में 2 ब्राह्मण आ गए मायापुर से, बंगाल से। वो सन्यासी थे और माधवेंद्र पुरी को उनसे बहुत अच्छा लगा। माधवेंद्र पुरी उनको बोले आप यहीं रुक जाओ, डोंट गो देयर। फिर माधवेंद्र पुरी उनको दीक्षा भी दे दी और फिर वो डेली सर्विस करते। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि वो सेवा में हमेशा लगे थे। जो षड गोस्वामी हैं उन्होंने वृंदावन में मंदिर बनाए। वृंदावन में 7 temples हैं। Anybody knows which are the 7 most important temples in वृंदावन? एक एक नाम बताइए। 7 मंदिर कौन कौन से हैं? एक नाम बताइए। मदन मोहन और राधा रमन, राधा रमन, राधा गोविंद देव, राधा दामोदर, राधा गोविंद देव, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद। यस, हो गए 7 हो गए। वेरी गुड। मैं खाली चेक कर रहा था आप लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। आई वांटेड टू मेक श्योर एवरीबॉडी इज अवेक। Yeah, you can see me but I cannot see you, so I can make out from the sound.
So Prabhupada is writing here that this temple which was started, that not that the disciples were family members of original Goswamis. All the Goswamis in the renounced order of life. हाँ, अभी क्या था, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं सेवाइट हूँ क्योंकि मैं मेरे परिवार का हूँ, मैं जीवा गोस्वामी के फैमिली का हूँ, लेकिन एक्चुअली ये टेम्पल्स जो है वो तो सन्यासियों ने शुरू किए थे अधिकांश। तो हमें सोचना नहीं चाहिए कि मेरा मंदिर है, भगवान का मंदिर है, मैं केयर टेकर हूँ। नाउ विल कम टू for 2 years service went on. One day was a dream. Onkar Gopal Prabhu, you are ready? Yes, true. Prabhu, I am also ready with book. Pankaj Netra Das. Yeah, okay. First Pankaj Netra Prabhu will read. Prabhu, No you problem. Shlok number 106, Pankaj Netra Prabhu. Shlok number 106. Okay. Madhya Leela chapter 4. Yes, 106 number. Abhay Prabhu, you can highlight the screen. Abhay Prabhu. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. I am highlighting. गोपाल कहे एक मिनट, गोपाल कहे पूरी तो मैं बंगाली बोलूंगा, आप ट्रांसलेशन पढ़ लेना। yes sir. गोपाल कहे पूरी हमारा तापा नहीं जाए, गोपाल कहे पूरी आमा तपा नहीं जाए, मंगल जय चंदन ले पर तबे से जुड़ाए। मंगल चंदन पंकज नेत्र प्रभु ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट पढ़िए। सपने में माधवेंद्र पुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं, मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है, तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। तात्पर्य, गोपाल विग्रह अनेक वर्षों तक जंगल में दबे पड़े रहे और अब यद्यपि उन्हें प्रतिष्ठित के उनका हजारों घड़े पानी से अभिषेक किया गया था, फिर भी उन्हें गर्मी लग रही थी। इसीलिए उन्होंने माधवेंद्र पुरी से मलय प्रांत से चंदन लाने के लिए कहा। मलय में उत्पन्न चंदन अत्यंत विख्यात है। यह प्रांत पश्चिमी घाट में है और नीलगिरी पहाड़ियां कभी कभी मलय पर्वत कहलाती है। मलय ज शब्द मलय प्रांत में उत्पन्न चंदन का सूचक है। कभी कभी वर्तमान मलेशिया देश को भी मलय कहते हैं। पहले इस देश में भी चंदन उत्पन्न होता था, किंतु अब उनको रबड़ के वृक्ष उगाना अधिक लाभप्रद लगता है। यद्यपि किसी समय मलेशिया में वैदिक संस्कृति प्रचलित थी, किंतु अब वहां के सारे निवासी मुसलमान हैं। अब मलेशिया, जावा तथा इंडोनेशिया में वैदिक संस्कृति लुप्त हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत तो प्रभु जी रेड इन हिंदी, सो मैं इंग्लिश में थोड़ा पढ़ूंगा कि दैट दिस माधवेंद्र पुरी सॉ गोपाल एंड गोपाल इज टेलिंग that Madhavendra Puri, I am still feeling heat. Go and get some chandan. It's interesting because now the season is heat. अभी वैसे भी देखते हैं पूरे भारत में गर्मी बढ़ रही है, इसलिए कहानी पढ़ना अच्छा है। ये कहानी सुनने से आपकी भी गर्मी दूर हो जाएगी, माया की गर्मी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। प्रभुपाद is telling in the purport that Lord Gopal told him to get chandan, and at that time chandan was available and in the hill called Nilagiri. मलय पर्वत, तो मलय पर्वत से चंदन लाने को। एंड मलेशिया, Prabhupada is commenting about Malaysia that previously Malaysia would also have chandan, but now they have got rubber because rubber is giving more money. आजकल मलय चंदन की जगह पे लोग रबड़ के पीछे पागल हो रहे हैं। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं मलेशिया में वैदिक संस्कृति अब कम हो गई है, सब मुसलमान बन गए ज्यादा। तो इंडोनेशिया में भी now of course with the preaching of ISKCON devotees, Indonesia, at least there are some good centers. I had gone to Indonesia 10 years back and I saw that there are about 8 to 10 centers in a small city called Bali. एक छोटा सा शहर है बाली नाम का, और वहां पर इतने सारे ISKCON के मंदिर हो। So some transformation is taking place. So Madhavendra Puri, Lord told him, go and get chandan. You are the only one who can get. आप लेकर आओ चंदन। अभी मेरा प्रश्न है, भगवान को चंदन लाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो खुद जाके नहीं, भगवान नहीं ला सकते क्या? कोरियर भी कर सकते हैं। Why Lord is telling him to get chandan? Lord can himself get the chandan. What is the answer to this question?
को सेवा देना चाहते हैं। Want to give service to the devotees. Yes. Any other answer? और कोई answer? और इससे भगवान का प्रेम उनके पास आएगा. Right. और कोई भक्त बोलेंगे कोई आंसर? आदान प्रदान. Glorify his devotees. Yes, all these answers are correct. Lord wanted to engage him in service, wanted to glorify him, and Lord takes pleasure in glorifying devotees. भगवान को चाहते थे कि माधवेंद्र पुरी का नाम हो जाए. अगर भगवान चंदन खुद ही प्राप्त कर लेते तो फिर ये कहानी पढ़ने को ही नहीं मिलता हमको. The Lord, like Lord told Arjuna, I have already killed everybody. Battle is over, but I want you to go and get the credit. I want you to fight. भगवान बोले कुरुक्षेत्र की लड़ाई में ऑलरेडी सब मर चुके हैं, फिर भी आपको लड़ाई करना होगा. क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको क्रेडिट मिले. So Madhavendra Puri got up in the morning and he just started walking Bengal towards Bengal. अभी पैदल निकल पड़े. आप सोचिए, अभी जनरली हम टिकट देखते हैं ट्रेन में तो बोलते हैं कंफर्म होना चाहिए, विंडो सीट होना चाहिए, एसी में होना चाहिए. But he was just walking. Imagine walking more than 1,000 kilometers. 1000 से ज्यादा जंगल से गुजर रहे हैं. उन्होंने अपनी सेवा सबको सौंप दी. भाई देखो तुम ड्यूटी वर्शिप करो, तुम कुकिंग करो, तुम अकाउंट्स देखो, और खुद निकल पड़े. तो साधु को डिटैच होना चाहिए. While he was walking, he came to शांतिपुर, हाउस ऑफ अद्वैताचार्य. वो शांतिपुर में आए और अद्वैताचार्य से दोस्ती हो गई. फिर अद्वैताचार्य ने बोला कि आप मेरे को दीक्षा दो. माधवेंद्र पुरी ने अद्वैताचार्य को दीक्षा दे दी. So in this way we see that Advaitacharya is disciple of Madhavendra Puri. फिर then प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि गुरु बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या ब्रह्मचारी गृहस्थ. It does not matter whether one is Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Kiba Vipra, Kiba Nyasi, Shudra Kena Naya, जय कृष्ण तत्ववेती से गुरु है. कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या शूद्र हो, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु बनने के लायक है. Such a person is fit to be a guru. It is not important to belong to a particular caste. Sometimes people think how American person can be guru or how grahastha devotee can be guru. कोई लोग बोलते हैं ना कि ये तो अमेरिकन गुरु हैं, ये कैसे दीक्षा दे सकते हैं. तो भगवान के भक्ति में जाति का और शरीर का कोई भेद नहीं होता. कोई व्यक्ति भी भगवान का नाम जो प्रचार कर रहा है वो गुरु बन सकता है. इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरी वहाँ शांतिपुर से निकले और अब वो पहुंचे खीरचोर गोपीनाथ मंदिर. अभी ये कहानी का रियल पार्ट शुरू हो रहा है. हाँ, तो आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और कल हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो माधवेंद्र पुरी रेमुना में पहुंचे. किसी को मालूम है रेमुना नाम कैसे हुआ? हाउ दिस प्लेस गॉट द नेम रेमुना? एनीवन वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? रेमुना ये शब्द आता है रमणीय से. That one word रमणीय means very beautiful. Because it was very beautiful place, so devotees called it रेमुना. इसमें भगवान रामचंद्र जी भी आए थे. लॉर्ड रामचंद्र ऑल्सो केम टू रेमुना. इनफैक्ट ये जो डीटी है ये भगवान राम ने बनाई. वन डे मदर सीता आस्क्ड लॉर्ड राम while in exile, what will be your next incarnation like? भगवान सीता देवी ने भगवान राम से पूछा आपका अगला अवतार कौन सा होगा, नेक्स्ट शो. भगवान राम ने एक पत्थर हाथ में लिया और उसके ऊपर एक बाण से ऐसे मूर्ति बना के दिखा. The Lord made a deity in a stone. He said, "This will be my form." वो मूर्ति, और उसमें वो कृष्ण की डीटी थी. सीता देवी बोले अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सेवा करूंगी. तो उन्होंने उनकी सेवा की कई सालों तक. जब सीता महारानी चले गए तो ये सेवा अलग अलग लोग करते रहे और आज भी इसकी सेवा रेमुना में हो रही है. ये उड़ीसा में स्थान है, जगन्नाथपुरी और कलकत्ता के ऑलमोस्ट बीच में 50%. राइट? श्री राम प्रभु करेक्ट है ये अप्रोक्सीमेटली? Yes, Prabhuji, correct है. Shri Ram Prabhu is one of the pandas of Odisha. So any time you can go with him. सबको ले जा सकते हैं प्रभु जी. और आप सबको वहाँ प्रसाद खिलाएंगे ना प्रभु जी? Yes, Prabhuji.
खीर, वहाँ का खीर बहुत स्पेशल है। आप में से कितने भक्तों ने खीर खाया है? प्लीज से हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। उसके उस खीर के बराबर एक ही चीज है दुनिया में, और वो है वो खीर, अनपैरेलल्ड। तो माधवेंद्रपुरी वहां गए तो मंदिर में दर्शन किया। हाँ, गोपीनाथ रूप देखी हैल विह्वल मन। गोपीनाथ के रूप को देखकर वो इतने भाव विवल हो गए, एक्सटेसी में हो गए। और माधवेंद्रपुरी कॉरिडोर में सब देख रहे थे। फिर ब्राह्मण से पूछा, यहाँ पर भगवान को क्या क्या भोग लगता है? He was asking, what kind of offerings are offered to the Lord? जनरली हम भी पूछते हैं ना, आज मंदिर में भगवान को क्या क्या भोग लगा है? यस, सुधीर गोपाल प्रभु, हम किस लिए पूछते हैं कि आज क्या क्या भोग लगा है? क्या हमारा मेंटालिटी होता है जनरली? हमारे हमें क्या मिलेगा? नहीं, क्योंकि जैसे आज मैं अभी यहाँ वृंदावन में हूँ, तो अभी भगवान को 12 बजे भोग लगेगा, उसके बाद मैं पता लगा तो हाँ, यहाँ भगवान को आज ये सब्जी लगेगा, मेरे को भी वो मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। लेकिन माधवेंद्र पुरी इज आस्किंग, व्हाट आर द आइटम्स दैट आर ऑफर्ड टू द लॉर्ड? भगवान को क्या भोग लगेगा? व्हाई इज ही आस्किंग दिस? ही इज अ प्योर डिवोटी, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज ओन ईटिंग। वो क्यों पूछ रहे हैं? माधवेंद्र पुरी पूछ रहे हैं क्या भोग लगेगा? हाँ, तो आंसर करेगा इसके क्वेश्चन का? क्या मतलब कि उनका तो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि भगवान को अच्छा भोग लगे। कुछ क्या क्या लग रहा है जिससे कि भगवान को हाँ, यस, करेक्ट। माता जी, व्हाट आपने क्या बोला? माता जी ने क्या बोला? यहाँ पे क्या भोग लगेगा वो टेस्ट करके अपने गोपाल जी को। हाँ, करेक्ट, देने की उनकी इच्छा। दोनों आंसर करेक्ट है। यहाँ पे क्या क्या अच्छे आइटम भोग लग रहे हैं, वो ऐसा पता लगा के मैं वृंदावन में जाऊंगा और सेम आइटम में गोपाल जी के लिए बनाऊंगा। वो कि हमेशा यही सोचता है, जैसे अगर कोई एक फूल दिखेगा तो हमें क्या सोचना है? फूल को तोड़ के राधा श्याम सुंदर को अर्पण किया जाए। और जो भी चीज हमें दिखती है, ईश्वास्यम इदम सर्वम, सब भगवान का है, भगवान को अर्पण करने का सोचना चाहिए। तो सब माधवेंद्र पुरी को एक भक्त ने बताया कि यहाँ पर भगवान को बेस्ट फूड अर्पण किया जाता है, ओनली द बेस्ट फूड इज ऑफर्ड। एंड द पुजारी टोल्ड दैट इन द इवनिंग संध्या भोग लागे खीर अमृत केली नाम। यहाँ भगवान को एक खीर का भोग लगता है जिसका नाम है अमृत केली। यहाँ पे अमृत केली का भोग लगता है, और वो 12 मटके खीर का भोग लगता है। इस एक खीर इतनी फेमस है पूरे वर्ल्ड में, कॉल्ड गोपीनाथ खीर, यू नो, इट्स लाइक पेटेंटेड है, लाइक ऑल वर्ल्ड में फेमस है, और ये कहीं और ऐसी खीर नहीं मिलती। जब माधवेंद्र पुरी मन में सोचने लगे, माधवेंद्र पुरी वाज थिंकिंग, अयाचक खीर प्रसाद अल्प यदि पाए, स्वाद जानी तैचे खीर गोपाल लगाए। I will not ask, it's not proper for me to ask. But if without my asking the pujari gives me little kheer, then I will make similar preparation for Gopal. मैं मांगूंगा नहीं, बिना मांगे अगर मुझे थोड़ा सा खीर मिल जाता है तो मैं वैसा ही खीर गोपाल जी के लिए बनाऊंगा। फिर वो मन में सोचने लगे, ओह विष्णु विष्णु विष्णु, मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ भगवान को भोग लग रहा है, मैं खुद खाने की सोच रहा हूँ। आई एम एन ऑफेंडर, द लॉर्ड इज बीइंग ऑफर्ड समथिंग, एंड इंस्टेड ऑफ thinking of the Lord, I am thinking of my enjoyment. I am not fit to stay in this temple. Let me get out of here. मैं मंदिर में रहने योग्य नहीं हूँ। और फिर वो बाहर चले गए और एक थोड़ी दूरी पे पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, sitting. One very special quality is mentioned here. Verse number 123. 123 highlight करना प्रभु जी, 123. Sudhir Prabhu, please keep one devotee ready for reading the translation. अयाचक वृत्ति पूरी विरक्त उदास, अयाचित पहले खाए नाहे उपवास,
अयाचिता पहले खाए ना है उपवास। यस, औदर्य गोपाल। औदर्य प्रभु। Madhavendra Puri avoided begging. It was completely the screen. It was completely unattached. He was completely unattached and indifferent to material things. If without his begging, someone offered him some food, he would eat. Otherwise, he would fast. Purport. This is Paramhansa stage, the highest stage of sannyasi. A sannyasi can beg from door to door just to collect food, but a Paramhansa who has taken Aichitya Vritti or Ajaga Vritti does not ask anyone for food. If someone offers him food voluntarily, he eats. Yacha Vritti means accustomed to refrain from begging, and Ajaga Vritti indicates one who is compared to Python, the big snake that makes no effort to acquire food, but rather allows food to come automatically within its mouth. In other words, Paramahamsa simply engages exclusively in the service of Lord without caring even for eating or sleeping. It was stated about the six Goswami, Nidra Har Vihar Kadi Vichitao. In the Paramahamsa stage, one conquers the desire for sleep, food, and sense gratification. One remains a humble, meek mendicant engaged in the service of Lord day and night. Madhavendra Puri had attained this Paramahamsa stage. ये बहुत अच्छा परफॉर्ट हमारे औदर्य प्रभु जी ने पढ़ा। इसमें बताया गया है कि माधवेंद्र पुरी भीख भी नहीं मांगते थे। अभी देखो अलग अलग लेवल हैं वैराग्य के। एक है तो कि जो भी मिल जाए खाओ बिना भोग लगाए, जानवर कोई मिल जाए, कोई जानवर भी खा लो, नॉन वेज खा लो, ये तो पशु जीवन। उससे अच्छा है कि वेजिटेरियन खाना खाना लेकिन भोग नहीं लगाया। उससे अच्छा है कि वेजिटेरियन खाना भगवान को भोग लगा के खाना, और जो आपको चाहिए वो खाइए लेकिन भगवान को भोग लगाइए। जैसे मुझे इडली अच्छा लगता है तो मैं भगवान को बोलता हूँ मेरे भगवान को इडली अच्छा लगता है, और ऑफरिंग करके फिर मैं आई गेट व्हाट आई वांट बट ऑफर इट टू कृष्ण। उससे भी हायर प्रिंसिपल है टेम्पल लाइफ। अब टेम्पल में मंदिर में जो मिल जाए वो स्वीकार करें, वट एवर इज सर्व्ड इन द टेम्पल रूम वी टेक। उससे भी ऊंचा क्या है कि भिक्षा मांगना, घर घर जाके भिक्षा मांगना, जो भी मिल जाए। माता जी कुछ रोटी दीजिए, रोटी मिल गया। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं एक बार कोई मांग रहा था और एक गुस्से में उसको कुछ राख दे दिया तो उसने राख भी ले ली। He was given some ashes. Thank you माता। और उससे भी ऊंचा क्या है, मांगना ही नहीं। What we are discussing today is Madhavendra Puri do not even ask anything, just ऐसे लेटे रहना। कोई आएगा बोले प्रभु जी ये लो खीर है, खा लिया। कोई बोले प्रभु जी ये लो कुछ गरम गरम परोठा है, ठीक है। कोई नहीं आए तो फिर रिलैक्स कर, बस भूखे रह जाना। तो ये बहुत ऊंचा स्टेज है। जब मैं पहले इस्कॉन में आया था तो मैंने 1-2 दिन के लिए ट्राई किया था। मैं राधा गोपीनाथ टेम्पल में रहता था, तो मेरा ऑफिस था बाजू में कंप्यूटर पे। तो व्हाई वेस्ट टाइम, गो टू किचन, व्हाई प्रसाद हॉल, अपने आप आएगा तो ठीक है। तो एक दिन वेट किया, दूसरे दिन कुछ नहीं मिला तो मैं दौड़ के फिर टेम्पल महाप्रसाद को फिर जैसे डीटी से आया खाया। वी कैन नॉट इमिटेट दिस। हमारे लिए अच्छा है कि सिंपल जो भी स्टैंडर्ड है टेम्पल में मिल रहा है या घर में जो बन रहा है वही स्वीकार। But Madhavendra Puri was so advanced. It is said he would not even ask. Ayachak vritti means that lie down like a snake, like a python. शाम जो लेटा हुआ है, कोई भोजन आ गया तो खा लिया। तो इसको परमहंस से बोलते हैं, like 6 Goswamis. Nidra har vihara kadi vichitau. They conquered sleeping. Like Raghunath Das Goswami, he would chant and hear for 22 hours. 22 घंटे जपा कथा कीर्तन करते और 1.5-2 घंटे में सोना और खाना सब। हमारा भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, 1.5-2 घंटा जपा और बाकी समय खाना सोना। जस्ट कॉन्ट्रास्ट, जस्ट सी द कॉन्ट्रास्ट। रघुनाथ दास गोस्वामी 22 hours hearing chanting, 2 hours eating and sleeping. The more we give up eating sleeping, the more we will advance in Krishna consciousness. जितना कम हम खाएंगे, कम सोएंगे, उतना भक्ति में जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हमें जप बढ़ाना चाहिए। जैसे अभी ये लॉकडाउन के कारण कई डिवोटीज जप को बढ़ा रहे हैं।
कई लोग 20 माला कर रहे हैं, कई 25 माला कर रहे हैं, कई लोग 32 कर रहे हैं, you know. So it is possible that of course we have to do some duty in lockdown also. Work from home is there, but especially on Sunday. This Sunday is 26th, na Prabhuji, Sudhir Prabhu. Sunday kabhi is but day after tomorrow. Yes, for Sunday. 26. So it is a desire of Sudhir Prabhu, myself, that we will chant extra rounds on that day. So that is a very special day. It is the Akshay Tritiya. ये वो दिन अक्षय तृतीया जब भगवान को चंदन लगाया जाता है। सब मंदिरों में आप देखोगे, आप दर्शन फिजिकली नहीं भी कर सके, आप वृंदावन.tv, मायापुर.tv या जो भी आपके लोकल सेंटर हैं उनके नेट पे दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जप करना है उस दिन हमको। तो हम लोग लास्ट रविवार को आई थिंक 2 weeks back we chanted 64 rounds ना प्रभु जी, that was I think that was Sunday also. Yeah, last Sunday को भी, फिर last Sunday. Yeah. टू एकादश। कितने डिवोटीज ये संडे को करेंगे? बोलो हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी हम लोग ये जूम एप्लीकेशन में करेंगे, बैठ के झूम के नहीं करेंगे, लेकिन जूम एप्लीकेशन में करेंगे। So we will try to log on at 5 o'clock, 5 to 12 o'clock afternoon. जितना भी हो सके, if you can be together for at least 3-4 hours or 6 hours, but try to chant as much. And that is also the day many things happened that day. The whole list of बहुत सारे पवित्र दिन हुए थे उस दिन अक्षय पात्र द्रौपदी को मिला था और महाभारत का लेखन हुआ था, बहुत सारी चीजें। So we cannot imitate giving up, eating, sleeping. So we will have little prasad in between, and 1 o'clock lunch will be there. So but at the same time we'll try to reduce so that we can chant in here more and more. Now we'll go to the next verse, Prabhuji. अभय आनंद प्रभु, नेक्स्ट वर्स। अगला एक अभी 2 श्लोक और पढ़ेंगे, समय हो रहा है, 2 श्लोक और पढ़ लेंगे। प्रेमामृत तृप्त क्षुधा तृष्ण नाही बाढ़े, हीर इच्छा है लता है माने अपराधे, इच्छा है लता है माने अपराधे। A Paramhamsa like Madhavendra Puri is always satisfied in the loving service of the Lord. Material hunger and thirst cannot impede his activities. When he desires to taste considered that he had committed an offense by desiring to eat what was being offered to the deity. Purport. It is advisable that food being offered to the deity be covered when taken from the kitchen to the deity room. In that way, others may not see it. Those who are not accustomed to following the advanced regulative devotional principles may desire to eat the food, and that is an offense. Therefore, no one should be given a chance to even see it. However, when it is brought before the deity, it must be uncovered. Seeing the food uncovered before the deity, Madhavendra Puri desired to taste the food, to taste a little of it, so that he could prepare a similar sweet rice for his Gopala. Madhavendra Puri was so strict, however, that he considered this to be an offense. Consequently, he left the temple without saying anything to anyone. The Paramahamsa is therefore called Vijita Sadguna. He must conquer the 6 material qualities: Kama, Krodha, Lobha, Moha, Matsarya, and Kshuddha Trishna: lust, anger, greed, illusion, enviousness, and hunger and thirst. तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे पॉइंट बताए हैं परपोर्ट में कि माधवेंद्र पुरी जैसे जो प्रेमी भक्त हैं वो भूख और प्यास से परेशान नहीं होते, टॉलरेट कर लेते हैं। और वो सोच रहे थे कि मैंने ये खीर खाने की इच्छा प्रकट की, ये मैंने अपराध किया है। मतलब वैष्णव का गुण होता है कि वो अपने आप को हमेशा अपराधी मानता है, इज ऑलवेज थिंकिंग आई एम एट फॉल्ट। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब डीटी के सामने हम भोग लेकर जाते हैं तो कवर ढक के ले जाना चाहिए, जैसे कोई जानवर नहीं देखे, कोई खा नहीं ले। और माधवेंद्र पुरी ने जब देखा भगवान को भोग लग रहा था तो सोचते थे मैंने अपराध किया। एक्चुअली उनका अपराध नहीं था, वो परमहंस थे। परमहंस मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह सब कुछ उन्होंने जीत लिया था। फिर माधवेंद्र पुरी फिर मंदिर छोड़ के एक मार्केट में जगह पे रुक गए। He was sitting in the market
और वो जप कर रहे थे। इधर क्या हुआ, पुजारी जो है वो सो गए, भगवान को सुला दिया, और रात को उनको सपना आया पुजारी को, उठो उठो पुजारी, उठो पुजारी कर द्वारा विमोचन, खीर एक राखिया छे सन्यासी कारण। आपको मालूम नहीं है, मैंने एक खीर का बर्तन छिपा के रखा है। किसके लिए छिपाया है? Anybody like to answer? किसके लिए छिपाया था? माधवेंद्र पुरी के लिए। मेरे ट्रिक के कारण आपको मालूम नहीं पड़ा है। यहाँ पर माधवेंद्र पुरी नाम के सन्यासी, one devotee named Madhavendra Puri is there, he's sitting in the market. Take this sweet rice and go and deliver it to him. उसको दे दो। अभी पुजारी उठे, उनका आश्चर्य हुआ, स्नान किया उन्होंने रात को 2 बजे, और पर्दे के पीछे देखा, अरे ये खीर का बर्तन छिपा के रखा है, एक छोटा सा एक मटका। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जनरली पुजारी एक्सपर्ट होते हैं खीर को बांटने में या खत्म करने में। पुजारी डू नॉट कीप एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट डे। तो वो खीर का बर्तन लेकर वो दरवाजे के बाहर निकल पड़े रात को। माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरी, कौन है माधवेंद्र पुरी? आपके लिए भगवान गोपीनाथ ने खीर चुराया। He just crying out, माधवेंद्र पुरी। प्रभुपा जी तात्पर्य बहुत लंबा देते हैं, हम अभी आज नहीं पढ़ रहे, कल पढ़ेंगे। लेकिन प्रभुपा जी बताते हैं कि भगवान ने खीर चोरी किया। जनरली चोरी करना अच्छा नहीं माना जाता काम, कि दुनिया में कोई चोर पकड़ा जाता है तो सजा दी जाती, लेकिन जब भगवान चोरी करते हैं सब बोलते हैं माखन चोर नंद के लाला गोपाल की जय। भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य होता है। ऐसे भगवान ने यहाँ भक्त के लिए खीर चोरी की, इसलिए भगवान का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। और माधवेंद्र पुरी को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। माधवेंद्र पुरी बोले, हाँ तो मैं हूँ माधवेंद्र पुरी, क्या हुआ, व्हाट यू वांट, क्या हुआ? बोला, यू आर सो फॉर्चुनेट, लॉर्ड हैज टोल्ड अस sit right. The priest offered pranam to Madhavendra Puri and Madhavendra Puri offered pranam to the priest. पुजारी ने माधवेंद्र पुरी को देख के प्रणाम किया और माधवेंद्र पुरी के दोनों ने प्रणाम किया। कहानी बताई गई, तब माधवेंद्र पुरी समझ गए कि कितना भगवान का मेरे साथ प्रेम का आस्वादन है। How much the Lord loves me. Shri Gopinath Pran Prabhu is there still? Yes, Prabhu. For Gopinath Pran Prabhu, we'll have one. Yes, Prabhu, I am there. Yeah, I would like you to read the purport for 134. Then we will end the session with this reading. 134, Prabhu, highlight. 134. Gopinath Pran Prabhu, you have the book, na? Or you can. अभय प्रभु, अभय प्रभु है क्या? Otherwise, Gopinath Pran, you have the book with you? No, I don't have the book, but I can read from my mobile itself. Okay. This is verse number 134. I will read that Bengali. You read that translation and purport. आ गया. It has come on the screen. Kiralaya sukhe tumi karah bhakshane. Kiralaya sukhe tumi karah bhakshane. Toma sama bhagyavana nahi tribhuvane. The priest continued, would the sannyasi whose name is Madhavendra Puri please come and take this pot of sweet rice and enjoy the prasadam with great happiness. You are the most fortunate person within these 3 worlds. Here is an example of a personal benediction by Krishna, immoral activity. By Gopinatha's stealing for his devotee, the devotee becomes the most fortunate person within the 3 worlds. Thus, even the Lord's criminal activities make the devotee the most fortunate person. How can a mundane rascal
understand the pastimes of Krishna and judge whether he is moral or immoral. Since Krishna is the absolute truth, there is no mundane distinctions. Such a moral and immoral, whatever he does is good. This is the real meaning of God is good. He is good in all circumstances because he is transcendental, outside the jurisdiction of the material world. Therefore, Krishna can be understood only by those who are already living in the spiritual world. This is corroborated in Bhagavad Gita 14.26. Mamcha yo vyabicharena bhakti yogena sevate sagunain samatitan brahma bhutaya kalpate. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. One who is engaged in unalloyed devotional service to the Lord is already situated in the spiritual world. Brahma bhutaya kalpate. In all circumstances, his activities and dealings with Krishna are transcendental and thus not understandable by mundane moralists. It is therefore better not to discuss such activities amongst mundane people. It is better to give them the Hare Krishna Maha Mantra so that they will gradually purified. They will be gradually purified and then understand the transcendental activities of Krishna. हाँ, this is very important purport. ये बहुत important तात्पर्य है जब प्रभु जी ने अभी पढ़ा गोपीनाथ प्राण प्रभु reading about Gopinath's Leela. The priest is saying the सन्यासी, वो बोल रहे हैं सन्यासी कौन है? आप भाग्यशाली हो तीन जगत में. मैंने तात्पर्य इसलिए चुना क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी अपने हृदय की बात बता रहे हैं. प्रभुपाद is saying here that how a Lord is doing apparently immoral activities for his devotee. भगवान नीति के विरुद्ध कर रहे हैं. ऐसे मैं जाके अगर टेम्पल रूम से खीर चुरा लेता हूँ तो मेरे को सजा होगी, मेरे को निकाल दिया जाएगा. लेकिन गोपीनाथ चोरी कर रहे हैं और सब बोल रहे हैं खीर चोर गोपीनाथ की जय. तो भगवान के जो क्रिमिनल एक्टिविटी भी हैं वो भक्त को गुणवान करने के लिए. लॉर्ड इज डूइंग दिस एक्टिविटी टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटी. तो संसारी व्यक्ति जज नहीं कर सकता कि कृष्णा नीति है अनीति है. कई बार लोग बोलते तुम्हारे कृष्णा जय वो गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा का गोपियों के साथ डांसिंग भी दिव्य एक्टिविटी है. वी कैन नॉट अंडरस्टैंड बाय मटेरियल ब्रेन. तो भगवान बोलते हैं गॉड इज गुड, वॉट एवर ही डज इज गुड. भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं. और यहाँ बताया गया अंत में कि जो भगवान की भक्ति करता है माम च विचारे न भक्ति योगे न सेवत, भक्ति योग से अपने आप गुणों से ऊपर उठ जाता है. लास्ट पार्ट प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में जो भक्ति में लगा है वो ऑलरेडी आध्यात्मिक स्तर पर है. संसारी लोग ये लीला नहीं समझ सकेंगे. जैसे खीरचोर गोपीनाथ, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस विद न्यू कमर्स, दे विल नॉट अंडरस्टैंड गॉड इज अ थीफ, व्हाट काइंड ऑफ गॉड आर यू वर्शिपिंग, तो वो नहीं समझ पाएंगे. इसलिए नए लोगों के लिए क्या बोलते हैं, बस हरे कृष्ण मंत्र जप करो, फिर वो शुद्ध हो जाएंगे तो समझ में आएगा कृष्ण की दिव्य क्रिया. Prabhupada ends by saying, when they become purified, they will understand the transcendental activities of Krishna. Janma karma chame divyam. जन्म कर्म सब कुछ दिव्य है. तो हम भी हरि नाम लेके शुद्ध हो जाएंगे तभी समझ पाएंगे. We also chant more and more, then we can understand Chaitanya Charitamrita Bhagavad. Hare Krishna. Thank you very much. Any comments or any realizations? Anybody would like to add? कोई कुछ अपने साक्षात्कार या कुछ बताना चाहेंगे जो अपने दूसरे भक्तों से सुना है? पंकज नेत्र प्रभु कुछ बोलेंगे? Katha was very